या दरबार को आपने दीप जला आगाज कर दो, दीप जला आगाज कर दो। तो अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय अतिथिगण, विद्यालय के मुख्य अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक गण और प्रशासनिक अधिकारी जी को कि वे मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम में शामिल अतिथिजनों को प्रेम स्वरूप फूलों के गुलदस्ते भेंट करें। आपका कोटि कोटि आभार। शत शत नमन है आपको हे शारदे माँ, अज्ञानता के सागर से हमें तार दे माँ, अज्ञानता के सागर से हमें तार दे माँ। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अगर भगवान को याद कर लिया जाए तो ये हम सब के लिए कल्याणकारी होता है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित
करना चाहूंगा करतार पब्लिक स्कूल की छात्राओं को सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए। कश्चित् दुःख
बहुत खूब, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा। स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को कि वे मंच पर आएं और आज के मुख्य अतिथिगण, निर्णायक गण और प्रतिभागी विद्यार्थियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। Blissful morning greetings to all of you. It is a great pleasure for me to welcome you all on the occasion of Nane Kalavan, an inter-school storytelling competition under the banner of Sahodaya Schools Complex, Jammu chapter, hosted by Kartar Public School. I extend my hearty welcome to our chief guest, Dr. Arvinder Singh Aman, Additional Secretary, J&K Academy of Art, Culture and Languages, Special Advisor to Kartar Public School. Team KPS always feel proud of being associated with him, and it is honor for all of us to be graced by the presence of such a great personality of our state. Welcome you, sir. Warm welcome to our special guest, Mr. KCS Mehta, ex-president, Jammu Sahodaya School Complex. I express my gratitude to you, sir, as when I approached you, you accepted my invitation and joined us today as our special guest. He merely requires any introduction, though he is well known for his work in the field of education as well as in Jammu Sahodaya. Special welcome to our worthy chairman, Engineer Nirmaljeet Singh, who is a man of great vision, passion and wisdom for education. Loving welcome to judge of the event, Mrs. Rita Sharma, senior lecturer in Hindi from Government High Secondary School, Salan. And I am really thankful to you, ma'am, for taking time out of your busy schedule and gracing today's event as judge. We are also honored to have with us today Mr. M.K. Bhan, Principal, JKPS Kathua. Welcome you, sir. We are also having Dr. Mukteshwari Sharma, lecturer in music from Government Degree College, Women, Udhampur, with us today. Welcome you. Warm-hearted welcome to all participants and their escorting teachers. I'm really feeling great on seeing all of you and your enthusiasm. Welcome and gratitude to all the students, team members of KPS and media persons for gracing the event and being with us always. I hope this event will be enjoyable and great learning experience for each one of us. Once again, heartiest welcome to all of you. Thank you. धन्यवाद महोदया जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे बीच आ रहे हैं कक्षा 3री से 5वीं के हेड बॉय। मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा। आगे बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर, मिल गई तो ठीक है वरना तजुर्बा तो होगा। नमस्कार, मैं एकम सिंह कक्षा 3 से 5 का हेड बॉय नन्हे कलावन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमारे स्कूल के लिए यह बहुत ही
प्रतिष्ठित अवसर है कि सहोदया कॉम्प्लेक्स के द्वारा हमें इस प्रतियोगिता का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि आज के दिन के महत्व और मूल्य के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी के चेहरे की चमक साफ बता रही है कि आप सब यहाँ आकर कितने खुश हैं। आओ सुने कहानी नन्हे कलावंतों की जुबानी। प्रतियोगिता के नियम हैं। कहानी नैतिक मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। कहानी कथन के समय 2 से 3 मिनट तक होगा। प्रतिभागी कहानी कथन के समय अपना और अपने विद्यालय का नाम नहीं बताएगा। प्रतियोगिता का परिणाम कार्यक्रम के अंत में घोषित किया जाएगा। आप सब कामयाब हो, इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करूंगा परी और इज्जत से। धन्यवाद एकम। मैं अपना किरदार कब तक छुपाऊंगा? कहानी ऐसी है कि सबको नजर आऊंगा। कहानी ऐसी है कि सबको नजर आऊंगा। कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे पहले प्रतिभागी को। प्रतिभागी 1 मंच पर आए। यहाँ पर उपस्थित सभी निर्णायक मंडल, प्रधानाचार्य जी एवं सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रयास करो तमाशा मत देखो। आशा करता हूँ आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक समय की बात है, जंगल में
वेरी गुड। बहुत अच्छे। परी, क्या तुम्हें कहानियाँ सुनना पसंद है? हाँ बिल्कुल, तो बुलाते हैं प्रतिभागी 2 को। हेलो, हाँ संजय, आगे अब आज ऊपर आ जाना, ऊपर हॉल में है इनका ऑडिटोरियम आ जाओ। नमस्कार, आज मैं आप सबके समक्ष जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मेरी कहानी का शीर्षक है हम सबका हुआ कि ना जीवन 2-3 सरल। प्रिंसिपल जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। उसका रंग रात के अंधेरे से भी काला, इसीलिए वे रो रहा था। वहां से एक साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा, अब क्या बताऊं, मेरा रंग रात के अंधेरे से भी काला है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। साधु महाराज ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा जीव बनना है? कौवे ने बड़ी उत्सुकता से जवाब दिया, मुझे तो हंस बनना है। साधु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ। एक बार हंस से मिलकर तो आओ। कौवा उड़ते उड़ते हंस के पास पहुंचा। उसने हंस से कहा, हंस भाई आप तो बड़ी सुंदर लग रहे हो। हंस ने कहा, सुंदर? और मैं? मेरा रंग सफेद है और सफेद रंग मौत की निशानी होता है। फिर वे दोनों साधु महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने साधु महाराज को पूरी घटना बताई। साधु महाराज ने पूछा, अच्छा अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा जीव बनना है? हंस ने भी बड़ी उत्सुकता से जवाब दिया, मुझे तो मोर बनना है। साधु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना देता हूँ। एक बार मोर से मिलकर तो आओ। हंस उड़ते उड़ते मोर के पास पहुंचा। उसने मोर से कहा, मोर भाई आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो। मोर ने कहा, सुंदर? और मैं? ठग 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 आवाज सुनाई दे रही है, ये शिकारियों की है। वे मुझे मारकर मेरे पंख बेच देंगे। वे सब दुविधा में पड़ गए कि उन सब में से किसका जीवन सबसे सरल। वे साधु महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने साधु महाराज को उनकी पूरी दुविधा बताई। साधु महाराज ने कहा, तुम सबका जीवन सरल है। अब देख लो, कौवे का कोई शिकार नहीं करता, हंस को सबसे सुंदर जीव माना जाता है और मोर के नाच से सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वे सब खुशी से नाचने लगे। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सबका जीवन सरल है। भगवान ने हम सबके
शेयर किया मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मानकर ये धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। एकलव्य की ऐसी अटूट श्रद्धा देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तुमने मेरे द्वारा ये धनुर्विद्या सीखी है तो तुमने मेरी गुरु दक्षिणा तो नहीं दी। एकलव्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने एक भी क्षण देरी न करते हुए अपनी कटार से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर ने कहा, जब तक आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र हैं, तब तक तुम्हारे गुरु भक्ति का लोग स्मरण करेंगे। तुम्हारा यशगान इस संसार में फैलेगा और तुमसे बड़ा कोई भी गुरु भक्त इस संसार में नहीं होगा। अंत में मैं कुछ इन स्वर्णिम शब्दों से इस कहानी का अंत करूंगी। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने गुरु के दिए गए वचनों का अनुस्मरण करने की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब। कहानियां सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रतिभागी 4 को। जोरदार तालियों से प्रतिभागी 4 का स्वागत कीजिए। कदली सी बुजुर्ग मुख, स्वाति एक गुण थी, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दी। आदरणीय निर्णायकगण, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, जीवन वही अनमोल है जहाँ नैतिकता का मोल है। आज मैं आप सबके समक्ष एक नैतिक मूल्य पर आधारित एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है संगति का असर। एक बार की बात है, एक आदिवासियों का सरदार था। उसे जंगल में जाकर चिल्ला पकड़ने का बेहद शौक था। एक दिन वह जंगल में गया और उसने 2 तोते पकड़ लिए। जब वह उन तोतों को लेकर घर लौट रहा था, तभी एक तोता उसकी पकड़ से छूटकर फुर्र हो गया। आदिवासी उस तोते के पीछे बहुत देर तक भागा। फिर थक हार कर वह एक तोते के साथ ही घर लौट चला। दूसरा तोता जो उसकी पकड़ से छूट गया था, वह एक संत के पास जा पहुंचा। संत ने उस तोते को पूजा पाठ सिखाया और वह तोता थोड़े समय में ही पूजा पाठ सीख गया। दूसरा तोता जो आदिवासी के पास था, वह आदिवासी की बोली सीख गया। एक दिन एक नजदीकी राज्य का राजा जब अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी वह आदिवासी के घर का निकट पहुंचा। आदिवासी के तोते ने कहा, पकड़ो इसे, मारो। तोते के ऐसे अभद्र शब्द सुनकर राजा ने वहां रुकना उचित न समझा। तब वह थोड़ी आगे जाकर संत की कुटिया के पास पहुंचा। संत के तोते ने कहा, आइए महानुभाव, आपका स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तोते के ऐसे विनय पूर्वक शब्द सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ।
संगत, वातावरण और प्रशिक्षण का असर बहुत गहरा होता है। अतः सद्भिरेव सहासे, सद्भिर्कुर्वीत संगीतम, सद्भिर्वादम मैत्री च, ना सद्भिर किंचित आचरेत्। अर्थात हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि तर्क वितर्क भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बहुत खूब, बहुत अच्छी कहानी थी। जिंदगी की कहानी भले ही छोटी हो, पर किरदार दमदार होना चाहिए, पर किरदार दमदार होना चाहिए। अब आ रहे हैं अपनी रोचक कहानी के साथ प्रतिभागी 5। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस उक्ति का अर्थ है कि बुरे कर्मों का कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता। नमस्कार मान्यवर, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की मिट्टी गीली हो जाए तो इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। मेरी कहानी मेरी जुबानी। एक दिन मैं, मेरे पति और हमारे बच्चे घूमने गए थे। घूमकर आते समय हमारी गाड़ी एक ट्रक से टकराई, जिस दुर्घटना में मेरे पति और बच्चों की मृत्यु हो गई। अब केवल मेरा एकमात्र सहारा था मेरा भतीजा गोपाल। मैंने उसे अपना मानकर अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम लिख दी थी। संपत्ति लेते समय तो उसने खूब लंबे लंबे वादे किए, परंतु कुछ ही दिनों में मुझे खाना भी कठिनाई से मिलने लगा। एक दिन मेरे भतीजे गोपाल के बेटे राहुल की शादी थी। घर में बहुत रौनक थी, सब लोग बहुत खुश थे, परंतु मैं अपने कमरे में बैठी खाने की सुगंध से बेचैन होने पर हलवाई के पास आ बैठी। जैसे ही गोपाल की पत्नी रूपा ने मुझे देखा, वह मेरे दोनों हाथों को झटक कर बोली, आग लगे ऐसे पेट में, कोठरी में बैठे बैठे क्या आपका दम घुटता था। मन बहुत दुखी हुआ, किंतु मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। बहुत रात बीत गई, परंतु मुझे कोई बुलाने न आया, तो मैं अपने मन को रोक न सकी और धीरे धीरे सरकते हुए आंगन में जा पहुंची। जैसे ही गोपाल ने मुझे देखा, वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझे घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में पटक दिया। कार्यक्रम समाप्त हो गया, परंतु मेरी याद किसी को न आई। सबके सो जाने के बाद मेरी नींद खुली और जहां मेहमानों ने खाना खाया था, मैं वहां चली गई और अपनी भूख को मिटाने के लिए जूठी पत्तलों में से पूरियों के टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। इसी बीच गोपाल के बेटे राहुल की आंख खुल गई और जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, वह सन्न रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही वह मुझे और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। राहुल ने कहा, जिसकी संपत्ति उसकी ये दुर्गति। बेटे और बहू के जाने के बाद गोपाल और रूपा को अपने किए पर ग्लानि हुई। यह सच है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण से निवेदन करना चाहूंगी कि बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चले, परंतु मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी कहानी थी। हर कहानी हमें एक नई सीख देती है।
प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है दो घड़े। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सुंदर सा घर था। उसी घर के बाहर दो छोटे छोटे घड़े थे। एक घड़ा मिट्टी का था और दूसरा घड़ा तांबे का। दोनों घड़े उस घर के बाहर रहते थे। उसी घर के बाहर एक सुंदर सी नदी बहती थी। उसमें बहुत सारा पानी था, लेकिन बारिश के मौसम में उस समय बहुत बारिश हुई। नदी का पानी भर गया। नदी का पूरा पानी भर गया और बाहर छलकने लगा। बारिश आई, पानी लाई। बारिश आई, पानी लाई। बारिश आई, बाढ़ लाई। मतलब इतनी जोर से बारिश हुई, नदी का पानी भर गया। नदी का पूरा पानी भर गया और उस घर के पास जा पहुंचा। और जहाँ वो दो घड़े थे वो भी पानी में बहने लगे। दोनों घड़े पानी में तैर रहे थे। तभी मिट्टी का घड़ा बोला, अरे अरे अरे, मैं तो मिट्टी का बना हूँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचूं इस पानी से। तभी तांबे का घड़ा बोला, अरे अरे मेरे दोस्त, मत घबराओ, मैं हूँ ना, तुम मेरे पास आ जाओ। तभी मिट्टी के घड़े ने 2 मिनट सोचा, मैं क्या करूँ। सोच के उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं दोस्त, तुम तांबे के बने हो, तुम नहीं टूटोगे। मैं मिट्टी का बना हूँ, पानी का बहाव तेज हो गया तो हम दोनों टकराकर मैं टूट जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं पानी में तैरते तैरते नदी के किनारे तक पहुँच जाऊं। तभी तांबे का घड़ा बोला, तुम्हारी बात भी ठीक है। फिर दोनों घड़े पानी में तैरने लगे। तभी मिट्टी का घड़ा भी पानी में तैरते तैरते नदी के किनारे तक रुक गया और उसकी जान बच गई। तभी तांबे का घड़ा भी पानी में तैरते तैरते नदी के किनारे तक थोड़ी दूर आगे जाके रुक गया। उसकी जान भी बच गई। दोनों ने अपनी अपनी जान बचा ली। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मिट्टी के घड़े ने अपनी सूझबूझ, अपने पे विश्वास रखकर इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास के साथ कुछ भी संभव नहीं है, तो विश्वास के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद। बहुत खूब। इसी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिभागी 7 को। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बाबा जी को सिक्का ले हेलो बाबा जी, चलो हार्वर्ड की स्कूल चल रहे बाबा यार, स्कूल खत्म है, मास्टर स्कूल में पहले खत्म हो गई कॉलेज में प्रैक्टिस माटे ऐसे सब चीजें स्टोरी से ना सेम। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जीवन का मूल्य। एक दिन की बात है, पिता ने देखा कि उनका बेटा गुमसुम सा बैठा हुआ है। पिता ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, गुमसुम से क्यों बैठे हो। बेटे ने कहा, पिताजी मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। पिताजी मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो ये बात है, यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ठीक है। पिताजी ने उसे पत्थर उठाकर दिया और कहा कि तुम इसे लेकर पहले बाजार में जाओ। यदि वहाँ पर तुमसे कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम मुंह से कुछ न कहना, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना।
देना, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का संग्रहालय में चला गया। वहां पर उसे एक आदमी ने पत्थर की कीमत पूछी तो लड़के ने मुंह से कुछ न बोला, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी समझ गया और बोला, अच्छा 2000 रुपए, ठीक है, तुम मुझे ये पत्थर 2000 रुपए में दे दो। लड़के ने वह पत्थर नहीं बेचा और घर आकर सारी बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी बोले, अब तुम यही पत्थर लेकर बेशकीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ। यदि वहां पर भी तुमसे कोई इस पत्थर की कीमत पूछे, तुम मुंह से कुछ ना कहना, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का बेशकीमती पत्थरों की दुकानों पर चला गया। वहां पर दुकानदार ने उससे पूछा, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़के ने मुंह से कुछ नहीं बोला, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। दुकानदार समझ गया और बोला, अच्छा 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे 2 लाख रुपए लाता हूँ। लड़का मन ही मन हैरान रह गया, क्योंकि 2 लाख रुपए तो उसकी सोच से भी बाहर थे। तब उसने वह पत्थर नहीं बेचा और घर आकर सारी बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी बोले, अब इस पत्थर की जगह तुम अपने जीवन को रखे देखो। यदि तुम अपने जीवन को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारे जीवन की कीमत 200 रुपए है। यदि तुम अपने जीवन को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारे जीवन की कीमत 2 लाख रुपए है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमारा जीवन अनमोल है, हमें इसकी तुलना पैसों से नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान होती है। कहानियों से मिलने वाली शिक्षा हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। तो अब अपनी नैतिक कहानी के साथ आ रहे हैं अगले प्रतिभागी 8। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे अध्यापक और अध्यापिका। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है देश प्रेमी तोता। एक वन में एक तोता रहता था। आंखें घने पेड़ पर उसका परिवार बहुत खुश था। जीवन के सभी सुख आम के पेड़ से मिलते थे। वह स्थान किसी धनी के महल से कम न था। एक बार सूखा पड़ गया। सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे। उस वृक्ष पर कहीं से पक्षी रहते थे। पेड़ को सूखता देख कर वे उसे छोड़ गए। पेड़ का एक एक पत्ता सूख चुका था। घोंसले के लिए भी कोई जगह न रही। तोते का परिवार भूख और प्यास से मरने लगा। पर तोते ने पेड़ का महत्व छोड़ा। उस पेड़ ने जीवन भर सुख दिए थे, उसे वह कैसे भूल जाए। संकट काल में अपनी मातृभूमि को, देश को छोड़ना पाप है। ये सब विचार उसका मन भर आता था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से मर गए। तोता वहाँ जीवन के दिन जैसे तैसे काटने लगा। तभी इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ आए। बोले, हे तोते, तू इस पेड़ से क्यों चिपटा हुआ है? तेरा परिवार तो चल बसा। इस पेड़ से तुझे कोई लाभ नहीं, फिर तू यहाँ अपने प्राण क्यों गवा रहा है? तोते ने ब्राह्मण की बात सुनकर बोला, हे इंद्रदेव, मैंने आपको पहचान लिया है। आप इस प्राण समाप्तिये पेड़ को छोड़ने की बात न करिए। इसके कोमल पत्ते और फल खाकर ही मैं जिंदा रहा हूँ। इसने मेरी गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा में मेरी रक्षा की है। इसकी प्यारी शाखा को कटवा कर इसने मुझे घोंसला बनाने की जगह दी है। इस उपकार को मैं कैसे भूल जाऊं? आज इस पर संकट आ पड़ा है तो इसे छोड़ना मेरा धर्म नहीं है। मैं कर्तव्य नहीं हूँ। प्राण देकर भी साथ निभाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तोते के वचन सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तोते ने कहा, हे इंद्रदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस पेड़ को पहले की तरह हरा
कहानी थी। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। अब आ रहे हैं प्रतिभागी 9। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर हर किसी को समझ में कहाँ आती है। मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि मेरी कहानी आपको समझ आए। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण तथा इस सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक गांव में 2 मित्र, सोहन जो बहुत मेहनती था और नकुल जो भगवान भरोसे बैठा रहता और सोचता कि भगवान सब ठीक करेंगे। दोनों ने यह सोचकर 1 बीघा जमीन खरीदी कि जमीन फसल बेचकर खूब धन कमाएंगे और अपना एक आलीशान सा घर बनाएंगे। सोहन तो दिन भर खेत में मेहनत कर पसीना बहाता, लेकिन नकुल मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर हमारी फसल अच्छी कर देना। समय बीतता गया, फसल पककर तैयार हो गई। फसल को देख सोहन ने नकुल से कहा, देख नकुल, इस फसल का तो ज्यादा हिस्सा मुझे ही चाहिए। नकुल, क्यों? सोहन, पर देख नकुल, ज्यादा मेहनत तो मैंने की है, फसल तो मैंने काटी है, बीज तो मैंने बोए हैं और पानी भी तो मैंने दिया है। नकुल, पर फिर भी इस फसल का तो ज्यादा हिस्सा मुझे ही चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता तक भी नहीं हिलता। वे दोनों अपनी बात पर अड़ गए और अपने झगड़े को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया, समस्या तो है, और दोनों को एक पोटली कंकर से भरे हुए चावल दिए और कहा, तुम्हें सुबह तक कंकर और चावल अलग कर लाने हैं। सोहन से रात भर जितने कंकर और चावल अलग हो सकते थे उससे उत्तर किए, लेकिन नकुल मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर मेरे कंकर और चावल अलग कर देना। समय बीतता गया। सुबह मुखिया ने दोनों की पोटलियां देखी और मुखिया सोहन की पोटली को देख बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मुखिया ने कहा, नकुल, तुम्हारी पोटली में तो कंकर और चावल वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो नकुल ने कहा, मुखिया जी, मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मेरे कंकर और चावल अलग हो जाए। तो मुखिया ने कहा, देखो नकुल, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो मेहनत करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। सही बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अब बारी है प्रतिभागी 10 की। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। नमस्कार माननीय सभासद, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपने जीवन से निराश हो चुका था और अपने जीवन का मूल्य जानना चाहता था। एक दिन वो आदमी एक गुरुजी के पास गया और उनसे कहा, बताइए गुरुजी, जीवन का मूल्य क्या है? गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जा और इस पत्थर का मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है। वो सुनकर वो आदमी उस पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया। उसे वो पत्थर दिखाया और बोला, ओ संतरे वाले भैया, मुझे इसकी कीमत बताओ। संतरे वाले ने जब उस चमकीले पत्थर को देखा, उसने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें 12 संतरे दूंगा, चाहिए? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इसका मूल्य जानना था। फिर यूं कहकर आगे वो एक सुनार की दुकान पर गया, उसे वो पत्थर दिखाया और बोला, ओ सुनार, मुझे इसकी कीमत बता।
जानकारी के अनुसार तुम्हें इस पत्थर का मूल्य बताया है। जैसे संतरे वाले ने 12 संतरे, सोनार ने 2 करोड़ रुपए और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया है। अब ऐसे ही तुम्हारे जीवन का भी मूल्य है। तुम इसे 12 संतरे में बेच दो, या इसे 2 करोड़ में, या इसे बेशकीमती बना लो। ये तुम्हारे समझ के अनुसार है। यह सुनकर वो आदमी खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अपनी सोच का दायरा कम नहीं होने देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब। अब मंच पर आ रही हैं प्रतिभागी 11। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभी विशिष्ट व्यक्तियों को मेरा अर्थात भूमिका का नमस्कार। आज मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मुझ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ये कहानी समाज में नैतिक मूल्य के अभाव को दर्शाती है। बुढ़ापा जीवन का ऐसा पड़ाव है जिसमें बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मेरे पति और पुत्र की असमय मृत्यु के बाद मेरा एकमात्र सहारा था मेरा भतीजा बुद्धिराम। बुद्धिराम ने बड़ी ही चालाकी से झूठे वादे कर मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करवा दी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा स्वभाव से तो बहुत ही तेज थी, पर ईश्वर से डरती थी। पूरे परिवार में अगर कोई मेरी फिक्र करता था तो वो थी बुद्धिराम की बेटी लाडली। बुद्धिराम और रूपा मुझे रोज ताने सुनाया करते थे। मेरा अपमान दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई। बुद्धिराम के बेटे का तिलक था। एक तरफ सारे मेहमान बैठ के स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे और दूसरी तरफ मुझे भूखी प्यासी अंधेरी कोठरी पे पटक दिया जाता है। रात के 11 बज चुके थे। सारे भोजन कर सो चुके थे। जागे थे तो केवल 2 लोग, एक मैं जो भूख से व्याकुल थी और दूसरी तरफ लाडली जो मेरे लिए व्याकुल थी। लाडली ने अपने हिस्से की कुछ पूरियां मेरे लिए बचा कर रखी हुई थी। मौका मिलते ही वो पूरियां मेरे पास लेकर आई और मैंने झटपट से खा ली, परंतु मेरी भूख शांत नहीं हुई। उसी बीच रूपा की आंखें खुलती है और सामने का दृश्य देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने देखा कि मैं झूठे बर्तनों के बीच बैठी पतलों की झूठन चाट रही हूँ। इसे देखकर उसको अपनी गलती पे पछतावा हुआ और व्यंजनों से सजी हुई थाली में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई। उस समय मैं अपना अपमान उस प्रकार भूल गई जिस प्रकार एक नन्हा बालक मिठाई को देखकर अपनी डांट और मार भूल जाता है। सच में बच्चा बूढ़ा एक समान। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वो हमसे किसी धन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करते हैं, वो चाहते हैं तो केवल स्नेह, समय और सम्मान। धन्यवाद। बहुत खूब। इससे हमें यह शिक्षा प्रदान होती है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशेष अतिथि जी सरदार केसीएस मेहता जी को। कृपया आप आएं और 2 शब्द कहें। जोरदार ताली। Today's chief guest, Dr. Amanji, Additional Secretary, Culture Academy, J&K Government, Dr. M.K. Ban, renowned educationist and Principal, J.K. Public School, Kutuwa, Engineer Nirmal Ji, Chairman,
Kartar Public School, Principal Ma'am, teachers, and dear students, today I am really honored to be a part of this program, as I came all the way from Jammu, and first time I came here and is really impressed to see such a great infrastructure created in Kathua. This is the hard work, and this speaks the volume of commitment, hard work, and the facilities provided to the students in Kathua. Today's program is under the banner of Jammu Sahodaya Schools Complex. जम्मू सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं जम्मू के, इसमें सारे स्कूल्स, इसका कंसेप्ट यही है कि शेयर एंड केयर, होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, राइज टुगेदर, एक साथ उठना, एक दूसरे के हाथ पकड़ना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, शेयर करने, and is a sort of exchange program. Students are coming from various schools, they are visiting from various schools, they are interacting with each other, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के स्कूल का कल्चर जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जम्मू सहोदया जब स्टार्ट हुआ 2005 में, तो वी वर ओनली 5 मेंबर्स, और आज की डेट में मोर देन 50 स्कूल्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस जम्मू सहोदया। आज अभी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर राजेश राठौर है, ही इज प्रिंसिपल ऑफ JK पब्लिक स्कूल जम्मू। आई एम द मेंटर। हम सब सेवा कर रहे हैं, हम सारे मेंबर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वी आर ऑल द मेंबर्स, एंड वी सिट टुगेदर, वी प्लान टुगेदर कि कौन सी एकेडमिक के लिए, कौन सी को करिकुलर के लिए, टीचर्स के लिए, बहुत सारी है भाई। हमारे टीचर्स के भी कॉम्पिटिशन्स हैं, एक इंग्लिश का हो गया हुआ है, अभी हिंदी का होना है, इट विल बी इन अखनूर, हमारे स्कूल में होना है, ITPS अखनूर में। और मैं आई विल एक्सपेक्ट दैट सम टीचर्स विल कम फ्रॉम कठुआ टू पार्टिसिपेट। आई टेंटेटिव डेट इज 17th of December। तो आज एक्चुअली स्कूलों के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, एनुअल डे की भी कुछ स्कूलों में तैयारियां चल रही हैं, तो इसलिए नहीं तो कम से कम 15-20 स्कूल पार्टिसिपेट करते ही करते हैं मैम। तो आज का बहुत अच्छा बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन बच्चों ने दी, इट इज आई कैन से कि हर एक बच्चा जो है, ये जज के लिए बहुत टफ होगा इसका जजमेंट करना। मैं कहूंगा कि सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट हैं, कोई भी बच्चा सेकंड पे नहीं आया है। अब इसमें पैरामीटर्स हैं, कैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उस पे जज का वो जजमेंट करना बहुत टफ है। अदरवाइज कोई भी ऐसा स्कोर नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा न हो। द बेस्ट परफॉर्मेंस वाज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। बिग हैंड फॉर द स्टूडेंट्स, preparation of teachers, presentation of students, really it was very impressive program। और जो अरेंजमेंट करतार पब्लिक स्कूल की टीम ने किए बहुत ही सराहनीय है। My compliments to the principal and team of the teachers for arranging such a nice program and giving the best infrastructure, best facilities to the participant schools. So thank you very much ma'am for inviting me and giving me a chance to interact with the students and to see the good program. Thank you, all the best, and God bless Kartar Public School, God bless team of Kartar Public School. Thank you. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन जी को कि वे मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। शुक्रिया।
सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स जम्मू चैप्टर द्वारा आयोजित इस खूबसूरत कहानी कंपटीशन जो यहाँ पर अभी हुआ, इस मौके पर हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब KCS मेहता जी, जो देख रहा हूँ कि मेरे दाएं और बाएं दोनों और दो बड़े महान एकेडमिशियंस बैठे हुए हैं, राइटर्स बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं। मैं भान साहब की भी बात कर रहा हूँ, MK भान। मैं जब भी कहीं बच्चों के बीच जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं चीफ गेस्ट हूँ। और आज जिन बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, उन्होंने मेरी हालत ऐसे कर दी है कि मैं खुद को चीफ गेस्ट तो नहीं, मैं अपने आप को कटघरे में खड़ा महसूस कर रहा था और इन बच्चों को मैं अपने उन उस्तादों की तरह देख रहा था जिन्होंने मुझे बचपन से ही डांट के हर तरह के दंड को इस्तेमाल करके मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश रही, लेकिन मैं उनको नाकामयाब नहीं कहूँगा। मैं शायद इस काबिल नहीं हो पाया या बन पाया कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स जम्मू चैप्टर के इस मंच पर मैं जिन गुरुओं से अभी मिला हूँ, वो गुरु जिन्हें आप नन्हे कलावंत, ये नन्हे कलावंत शब्द जो है, इस शब्द के अंतर्गत जिन बच्चों ने भी यहाँ परफॉर्म किया, आज मुझे अपनी उस बात पे हमेशा गर्व भी रहता है और मैं आज खुद को शाबाशी दे रहा हूँ कि मैं जब भी बच्चों को एड्रेस करता हूँ तो एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मेरी नज़र में बच्चा शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ना समझ है। जैसा कि कहा जाता है, बड़े घर में कहते हैं कि तू बच्चा है, बड़ों की बातों के बीच मत बोला कर। तू बच्चा है, जहाँ बड़े बात कर रहे हो तो तू उसमें अपनी टांग मत अड़ाया कर। तू बच्चा है, तू अभी ये मत कर, तू बच्चा अभी ये मत कर। मेरा वो मतलब कतई नहीं रहता। मैं जब बच्चा और नौजवान एड्रेस करता हूँ कभी भी, किसी भी जगह, किसी भी मंच पे, तो उसके पीछे मेरी सोच ये होती है कि ये वो बच्चा है जो हर तरह की कला, हर तरह के आर्ट, हर तरह के उस काम के लिए बिल्कुल तैयार और 100% सशक्त है जिसकी हम ख्वाब देखते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसके लिए इस देश में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, सबसे ज़्यादा उम्मीद की जाती है। हम एक तरफ बच्चों को अपना भविष्य कहते हैं और दूसरा हम बच्चों को बच्चा समझते हैं। हम अपने इस द्वंद के बीच में घिसे रहते हैं और मेरी नज़र में बच्चा मुझसे कई गुना ज़्यादा ज़हीन है, समझदार है, कुछ भी करने की समर्था रख सकता है। एट लीस्ट मेरे, जब मैं अपने लिए कहता हूँ तो मैं अपनी उस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ जो बच्चों को बच्चा ही समझते हैं। आप बच्चों को मैं सीधा ये बात कहता हूँ विद कन्फेशन कि आप 1000 दर्जे हमसे बेहतर हैं और हमें पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जिन स्कूलों में, जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन घरों में इस तरह के बच्चे हैं, वो इलाका, उसका भविष्य हमेशा खूबसूरत रहेगा, सेहतमंद रहेगा और वो भविष्य रहेगा जिसका ख्वाब दुनिया देखती है और उस ख्वाब को पूरे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, सीधा बच्चों के साथ संबोधित करते हुए, कि हमने आपको जो जिंदगी दी है, जो माहौल दिया है, बाकी और कोई माने ना माने, मैं ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि वो माहौल उस काबिल नहीं है
जिस माहौल में हम जो ख्वाब आपसे देख रहे हैं, जो वो तवक्को करते हैं, वो आप करने के में काबिल हो सकें। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास घर था, हमारे पास बुजुर्ग थे, हमारे पास गांव था, हमारे पास पड़ोसी थे, हमारे पास दोस्त थे, हमारे पास बिरादरी थी, समाज था, भाईचारा था, प्यार था, मोहब्बत था, दूसरों को समझना और उनकी तकलीफ़ों में उनका हिस्सा बनना। हमारा हर त्यौहार मेला होता था, जश्न होता था, जिंदगी थी। हमने आपको छोटे छोटे बंद एसी कमरे दे दिए, हमने आपके हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दे दिया, हमने आपको इंसान से रोबोट बना के रख दिया, हमने आपकी जिंदगियों से प्यार छीन लिया है, हमने आपकी जिंदगियों से मोहब्बत, एहसास, दूसरों के प्रति हमदर्दी छीनी है। हमने वो स्पेस नहीं दी आपको। लेकिन मैं बड़ा शर्मसार हो रहा था यहाँ बैठे बैठे कि हमारे दिए इस माहौल में से आप खुद निकल कर हमारे सामने हमें वो रास्ते बता रहे थे जहाँ से हम टूटे हैं। आप फिर हमारे उन शास्त्रों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपने हमारे सामने फिर वो मॉडल लाकर यहाँ पर मंच पे रख दिए, जो मॉडल दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने की समर्था रखते हैं। हमारा वो शास्त्र, हमारे वो वेद, हमारे वो ग्रंथ, हमारे वो संत, हमारे वो ऋषि, वो सब संत मुझे आप इन बच्चों में दिखे। मैं इनको अगर सभी को ऋषि कहूँ, संत कहूँ, गुरु कहूँ तो वो कम नहीं होगा किसी भी तरह से। आज आपने फिर से मुझे एक बच्चे की तरह एक शास्त्र के साथ जोड़ने के लिए, हमारे प्राचीन भारत के उन मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं इसके लिए आप सभी नन्हे नन्हे संतों का आभारी रहूंगा। और मैंने जितने प्रतिभागी थे 12 के 12, अगर मैं गलत नहीं तो उन 12 बच्चों ने जो जिंदगी के अनमोल 12 नुक्ते जीने के हमें दिए हैं, वो मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। और मैं आपके इन उपदेशों को दुनिया तक, बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। एक मैं बात और करनी चाहूँगा कि मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर जितना भी प्रोग्राम हुए हैं, बच्चों की प्रस्तुतियों को वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की गई है। मैं यहाँ की मैनेजमेंट से, चेयरमैन निर्मल से और मैडम हरप्रीत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके आप एक कंपोजिट, एक इसका डॉक्यूमेंट बनाएं, वीडियो डॉक्यूमेंट, और इसको वायरल करें। मैं चाहता हूँ ये दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से ये हर जगह पहुँचना चाहिए और दुनिया को ये समझ आ जानी चाहिए कि बरनोटी के इस इलाके में इतने बढ़िया खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतने बढ़िया माहौल में हमें वो सब चीज़ें यहाँ पर बीज रूप में मिलने की यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिली है, जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएगा, जो भारत को स्वच्छ भारत बनाएगा और जो भारत दुनिया में इसको नंबर 1 देश बनाने की जो एक संकल्प लेकर बैठा है, उसकी पूर्ति का पूरा साजो सामान इन विद्यालयों में तैयार हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम के यहाँ तक लाने में जिन बच्चों को उनके स्कूल के जिन शिक्षकों ने जिस मैनेजमेंट में उनको तैयार किया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनको नमन भी करता हूँ। और जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने यूनिवर्सिटी में एज आर्टिस्ट परफॉर्म किया हुआ है। आप अगर जम्मू यूनिवर्सिटी का 1989 से लेकर 92 तक का डिस्प्ले ऑफ टैलेंट का रिकॉर्ड चेक करें तो इन 4 सालों में हमारे डिपार्टमेंट ने थिएटर, स्किट और माइम का कोई भी अवार्ड किसी को नहीं लेने दिया। लेकिन जो बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उसके बाद मेरा पैशन और प्रोफेशन सेम रहा। तो जिस जॉब में मैं हूँ, मैंने 30 साल से तकरीबन ऐसे कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहा हूँ, जजमेंट्स में भी रहा हूँ। मैं अभी सोच रहा था कि जैसे अभी मेहता साहब ने कहा कि इतनी टफेस्ट सिचुएशन में मैंने जूरी को कभी नहीं देखा होगा
कि इन बच्चों में से हमने कैसे किसको एक बेस्ट देना है। लेकिन मैं मेहता साहब की बात के साथ सहमत हूँ कि आप बेस्ट वाले पैरामीटर से कहीं ऊपर के दर्जे के कलाकार हो। ये सब मायने, ये सब पैमाने आपके लिए बहुत छोटे हैं बच्चों। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कहानी सुनाते हुए नहीं देखा, कहानी को परफॉर्म करते हुए देखा है। इतनी बढ़िया कहानी की परफॉर्मेंस, इतने बढ़िया कॉस्ट्यूम्स, इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बच्चों ने परफॉर्म किया कि मैं वाकई ही मैं अपने सारे प्रेशर्स जो हैं वो भूल चुका हूँ और मुझे वाकई एहसास हो रहा है कि मैं इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम जीव हूँ जिसे इंसान कहते हैं। और आप बच्चों ने मुझे ये समझाया है कि मैं इंसान हूँ, इंसान ही बनकर रहूँ। एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो बच्चों के लिए है, नहीं है। कहते हैं कि when you are not in a position to explain yourself, then others will start explaining you. आज ये बच्चे खुद अपने आप को एक्सप्लेन करने के काबिल हैं और दूसरों को उनके लिए आईना दिखाने के लिए सक्षम है। ऐसी कोशिशें, ऐसे प्रयास अगर रूटीन में चलते रहे तो मुझे गर्व है कि मैं इस ऐसी धरती में पैदा हुआ हूँ जहाँ स्वर्ग मरने के बाद नहीं, जीते जी भी देखा जा सकता है। मैं पूरी मैनेजमेंट को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक काम और करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बुके ज़रूर दिया जाता है और वह बुके खासकर बच्चों का प्रोग्राम हो तो वहाँ उस बच्चे को ज़रूर देता हूँ कि बच्चा मुझे बहुत प्यारा होता है। आज मेरी नीयत ख़राब हो गई है क्योंकि मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ जज्बाती तौर पर इतना जुड़ चुका हूँ कि ये खुद बनाया गया बुके है। मुझे खुद बनाई हुई चीज़ें मेरी सबसे ज़्यादा कीमती गिफ्ट होते हैं। ये मेरे साथ रहेंगे और मुझे आज गांधी के उस स्वदेशी के कॉन्सेप्ट का एक जीता जागता जो प्रेजेंटेशन माहौल यहाँ पर दिखा। आप देखो यहाँ पर जितने भी अभी मैम मुझे बता रही थी कि ये कतार पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट टीचर्स ने मिलकर ये सारी डेकोरेशन के फूल तैयार किए हैं। मुझे टच करके महसूस करना पड़ा कि ये नकली है। इतनी खूबसूरत तैयारी और जज्बाती तौर पर आप जब किसी काम के साथ जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी परफॉर्मेंस नंबर 2, नंबर 1 के पैरामीटर से ऊपर भी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस परिवार का बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ इसलिए खुशकिस्मत हूँ और मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि मेरे जितने भी छोटे हैं वो सब मुझसे बड़े बड़े काम करते हैं और मैं यहाँ आकर मैं उनकी कमाई का हिस्सा बनता हूँ और क्रेडिट ले लेता हूँ। हरप्रीत हमारे घर में, मैं भी किसी को बता रहा था कि एक ऐसा दरख्त का पत्ता हमारे घर में आया कि जिसके बाद हमारा हरियाली और सब खुशियाँ खेड़े आनी शुरू हो गई हैं। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी इसी तरह फलते फूलते रहें और हम ऐसे आयोजनों का मेला बनते रहें। मेरा परिवार है, मैं यहाँ की जितनी भी टीचर्स हैं, मैं जब से ये स्कूल हमने यहाँ पर शुरू किया मैं उनसे मिल रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि 15 या जितने भी साल इस स्कूल को हो गए वो चेहरे सब मैं वैसे यहाँ देख रहा हूँ और उन्होंने इस स्कूल को, हमारे कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, इसको एक परिवार का हिस्सा समझा और जहाँ परिवार का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ उम्र सिर्फ गिनती बन के रह जाती है। मुझे वो चेहरे वैसे ही दिख रहे हैं जो 15 साल पहले थे और मुझे उम्मीद है ये आने वाले और 20 साल ऐसे ही चेहरे खिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मुक्तेश्वरी जी को भजन प्रस्तुति के लिए। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हाँ जी, नहीं इक्कू नहीं है। जी जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर मुक्तेशी प्रोफेसर उधमपुर कॉलेज में। ये
क्लासिकल म्यूज़िक में इन्होंने पीएचडी की है। इनका परिवार उस्तादों का परिवार है, इसके पापा ही इसके गुरु हैं और ये इंटरनेशनल लेवल की क्लासिकल की प्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। हमारी एकेडमी का ये गर्व है, मान है। और मैंने अपने जम्मू कश्मीर में और पूरे नॉर्थ इंडिया में क्लासिकल गायकी में इससे बेहतरीन सिंगर मैंने आज तक नहीं देखी। और नेक्स्ट टाइम मैं कह रहा था अभी प्रेसिडेंट सर से कि पिछले दिनों स्पीक मैके के माध्यम से यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन कम वर्कशॉप हुई है क्लासिकल मौसीकी को लेकर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुक्तेशी के गुरु और उनके पापा जो मेरे दोस्त हैं कि वो किसी दिन यहाँ पर आएँ, हमारे यहाँ के बच्चों के साथ, लोकल्स के साथ एक खूबसूरत इवनिंग और इंटरेक्शन सेशन का यहाँ पर आयोजन करें। मुक्तेशी को मैंने आज रिक्वेस्ट की कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, अकेला हूँ, आप अगर मुझे कंपनी करें, तो इन्होंने कॉलेज छुट्टी ले ली सिर्फ यहाँ आने के लिए। मैं बहुत थैंक यू मुक्तेशी बेटा, आप आइए। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार और मेरे छोटों को मेरा नमन। नन्हे मुन्ने बच्चे लेकिन संदेश और ज्ञान बहुत बड़ा। और आज मैं स्पेशली अरविंदर सर को थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके इतने खुशनुमा परिवार का एक हिस्सा बन सकूं, इन खुशियों का, और ये ज्ञान बटोर के मैं लेके जा सकूं अपने साथ। तो आज जैसा कि मुझे कहा गया है भजन सुनाने के लिए, तो मैं एक छोटा सा भजन आप सबके सामने पेश करना चाहूँगी। आवाज आ रही है? आगे आगे राम चलत लक्ष्मण भाई भाई आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई भाई, जिनके पीछे जिनके पीछे जिनके पीछे चलत जानकी विपदा सही ना जाए, मोहे रघुवर की सुध आई आई, रघुवर की सुध सावन गरजी सावन गरजी सावन गरजी सावन गरजी, भादो बरसे सा
बहुत खूब, भजन सुन के तो आनंद आ गया। नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य मेरी भाषा है, नृत्य मेरे लिए सम्मान है, नृत्य मेरी पहचान है। अब मैं नृत्य प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने ही विद्यालय की छात्राओं को। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। Three, two, one.
अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के निर्णायक गण को कि वे मंच पर आएं और इस प्रतियोगिता पर अपने विचार प्रकट करते हुए परिणाम की घोषणा करें। सबसे पहले मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अविंदर सिंह जी, आप अतिरिक्त सचिव हैं जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा केंद्र के। आपके साथ KCS मेहता जी, जो कि सहोदय विद्यालय के एक अनुभवी परामर्शदाता हैं। आपके साथ NK भान जी, जो प्राचार्य हैं JK पब्लिक स्कूल कठुआ के। उनके साथ ही साथ एक स्वर कोकिला जो आज हमारे बीच में थी और हमारे साथ हैं, जो जिनकी सरपरस्ती में सारा कार्यक्रम हुआ है, इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी और कटार पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती हरप्रीत कौर जी। सबसे पहले तो तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन कंधों पे दे दी। सच मानिए बच्चों, एक चीज तो आप लोग सोच के आइए, जो सर ने कहा था कि आप में से हारा एक भी नहीं, हारे हम, हारे आज हम, जिनके लिए ये निर्णय करना इतना मुश्किल था कि हम किसको कितने नंबर, और अगर आप हमारे नंबर देखेंगे ना तो मतलब आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, इसके भी तो इतने, इसके भी इतने, इसके भी इतने हैं, इसके भी इतने। आप कहीं हल्की हल्की सी शायद कोई हमसे त्रुटि रह गई होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान नहीं मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप नहीं आए, कोई बात। लेकिन अगर मेरा बस चलता और मेरे पास ये अधिकार होता कि मैं सबको विजयी कर सकती, तो शायद मैं किसी एक को भी पीछे नहीं था। बाकी ये बहुत ही मुश्किल था, और जो माध्यम था कहानी का, मैं खुद हिंदी से मेरा संबंध है, तो जो कहानी कथा का ये जो कौशल है, ये सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण है। आज के इस माहौल में जब बच्चे डोरेमोन, है ना, छोटा भीम और कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, 24 घंटे आप लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं। ऐसे में अगर आप लोग एक दो एप्स, है ना, डाउनलोड कर ले कहानियों वाली, जैसी कहानी आपने सुनाई, तो बेटा वो वैल्यूज जो हम लोग आप में डालने की कोशिश करते हैं स्कूल में, नैतिक मूल्य आपके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश को हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि कहानियां जो हैं अपने आप में आपको इतना बढ़िया ज्ञान दे देती हैं कि वो ज्ञान शायद आपको हम भी नहीं दे पाते। हम लोग खुशकिस्मत थे कि हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था। आज आके रात का इंतजार होता था कि कब रात होगी, दादी या नानी के साथ सोएंगे, आज और एक कहानी सुनेंगे। हमें सारा दिन इसी चीज का इंतजार रहता था। मैं सच बता रही हूँ, अपने बचपन में कि हम दोनों बहनों में ये लड़ाई लगी रहती थी कि आज दादी के साथ कौन सोएगा, क्योंकि कहानी सुनने की उत्सुकता रहती। तो आप लोगों ने तो हमें ये बता दिया कि दादी नानी की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं, आपकी दादी और नानी से भी बढ़िया कहानी सुनाते हैं। तो बच्चे, दिल छोटा नहीं करना है, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मुझसे पहले इतना सब कुछ बोल चुकी हैं कि मेरे पास अब शब्द नहीं है। तो सबसे पहले मैं नीचे से शुरुआत करती हूँ, और प्लीज मैं यहाँ पर कान पकड़ के माफी मांगती हूँ आप लोगों से, अगर मैं मुझसे कोई गलती रह गई हो, या हम जो दोनों थे हम लोगों ने कोशिश की है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा था, लेकिन देखिए गलती हमसे भी हो सकती है, हम भी इंसान हैं,
हो सकता है कि किसी कहानी को सुनते हुए हम कहीं भाव में बह गए हों, इंसानों से गलती हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कंसोलेशन प्राइज से शुरू करें, ठीक है? मुझे नहीं मालूम स्कूल कौन सा है, क्या है। कोड नंबर 7, कोड नंबर 7। अब आपको खुद ही बता दीजिए बेटा स्कूल कौन सा है। वेरी गुड, माउंट लिट्रा जी स्कूल, लगेट मोड़, कठुआ। ओके, ये कंसोलेशन प्राइज के भागीदार बनेंगे। नंबर 3 पर कोड नंबर 9, कोड नंबर 9, कृपया मंच की ओर आए। शाबाश, कोड नंबर 9। आपका क्या स्कूल है बेटा, कौन सा स्कूल? APS दमाना, आर्मी पब्लिक स्कूल दमाना। और नंबर सेकंड K4, सॉरी, नंबर सेकंड पे रहे हैं K4, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है K4 ने। कोड नंबर 4। आप कौन से स्कूल से? APS मीरा साहब, ओके। और पहला स्थान हासिल किया, कोई बताएगा? एक अनोखी प्रस्तुति और कहानी सुनाई नहीं, कहानी को आप बीता किया। ये है कोड नंबर 5। जोरदार तालियां इसके लिए। आपके स्कूल का नाम बताइए। साई इंटरनेशनल स्कूल हीरानगर। जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि जी को, विशेष अतिथि जी को, कि वे मंच पर आए और इन सभी बच्चों को इनाम देकर सम्मानित करें। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कहानियां बिल्कुल दिल से छुई, कुछ कहानियों की प्रस्तुति, जैसे वो कौवा वाली कहानी थी। वो बच्चा खड़ा हो सकता है? हाँ बेटा, बहुत प्यारी और बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, लेकिन कहीं क्या होता है, हो सकता है कोई छोटी छोटी कोई त्रुटियां हो जाती हैं, बस उनके कारण। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी के साथ साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच है श्रीमान संजय कुमार जी, जो प्रिंसिपल हैं IDPS कठुआ के, और साथ ही साथ मिस सीमा संब्याल जी, जो प्रिंसिपल है होली प्रेजेंट स्कूल की। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कंसोलेशन प्राइज था नंबर 7, माउंट लिट्रा जी स्कूल, माउंट लिट्रा जी स्कूल, लवेट मोड़, कठुआ। थर्ड प्राइज APS दमाना, कोड नंबर 9। मैम आपकी क्या स्टेज पे? सेकंड प्राइज APS मीरा साहब, जम्मू। उन्होंने कोई और माइक भी ऑन किया था, 2 माइक ऑन किया, नाइस ज़्यादा हो गया था। पहले ऑन था। और फर्स्ट प्राइज जाता है कोड नंबर 5, साई इंटरनेशनल स्कूल हीरानगर। बहुत बहुत धन्यवाद।
बस इनसे थोड़ा एक स्टेप आधे नीचे खड़े रहेंगे, आधे ऊपर, थोड़ा हम एक स्टेप आगे चले। सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, दिव्यांशी शर्मा, स्वास्तिका शर्मा, आलिया राज, तान्या राजपूत, मयान वर्मा, पूर्वी चाड़क, प्रेरणा, प्रियांशी मनहास, काव्या सिंह, आद्या, यदुनंदन और तबलीन कौर। और जो बच्चे जिन्होंने आज प्रोग्राम एंकर किया, सबसे बड़ी वो भी आ जाए, आगे हो जाओ, वो भी आ जाओ, उनके लिए एक बड़ी कोलैब। देशी आप भी आ जाओ बेटा। इन प्रतिभागियों के साथ आई हुई सभी अध्यापिकाएं भी साथ में आ जाएं। बच्चे एक एक स्टेप अपना फ्रेम ठीक है, फ्रेम ठीक है। अच्छे आ जाओ सोफे तो। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कृपया अगर मंच पर ही रुकें। तो अब समय है हमारे अतिथियों का सत्कार करने का। तो मुख्य अतिथि जी को मैं निवेदन करूंगी, हमारी प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी जी से कि वे इनको प्रेम स्वरूप एक भेंट प्रस्तुत करें। हमारे विशेष अतिथि ये sir, one more thing. This is from teacher of Karnataka school. This is handmade. And you like handmade things, sir. ये सोहदेवाल करते हैं, साड़ी सोहदे की तरफ से। Can we have the children on stage, please? ये हमने बड़ा सर्टिफिकेट्स भी, ट्रॉफीज भी, ये गेस्ट की भी, and this is आर्टिस्ट के
There are two artists. म्यूजिक लगे एकम इधर बच्चे ये पकड़ जिस टीचर ने बनाया वही थे एक कला प्रेमी ही कला को पहचान सकता है। मगर मेरी बीवी आज बहुत खुश होगी इसको देख के और बाकी वो कहती काम पीछे करके रहती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ब्यूटीफुल। हैंडमेड चीजों का सर देखो ना जो आजकल जी। तो हमारे आज के विशेष अतिथि सरदार के.सी. मेहता जी, मैं निवेदन करूंगी कि ये विषय थोड़ी देर प्रस्तुत की जाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये ड्राइंग रूम में रखी हुई है ना, आज सब चीजें उड़ जाएंगी और ये वहाँ पे आ तो हमारे आज की प्रतियोगिता की जो निर्णायक रही है श्रीमती रीता शर्मा जी, मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रधानाचार्य जी से कि उन्हें भी प्रेम स्वरूप भेंट प्रस्तुत करें।